integration. Arts integration is an approach to teaching in which students construct and demonstrate understanding to an art form. Students engage in a creative process which connects an art form and another subject area and means evolving objects in both. Main theme of this particular arts integration getting introduced into our curriculum is that at any cost, at any sort, we have to enter into a student's mind, because right now the main basic problem of the students are they are not able to think out of the box. They are not able to think out of the box, they are not having critical thinking skills. And how can we help them to develop? While teaching, if we demonstrate a particular topic with a live example in an art form, that will definitely enter into a student's mind. Correct or not? Yes. So now, we have to change our approach of teaching. We can't just lay on a particular thing that, sir, I'll be just going into the class and I'll be reading some of the topics, I'll be explaining them into Hindi. No, this is not going to work out anymore, sir. Because now NEP 2020 is also going to be implemented. In that particular sector, they have already declared the basic theme. If we will check out the 5 main pillars of NEP 2020 is, can anyone please tell me the 5 pillars of NEP 2020? Accountability, affordability, quality, equity, and approachability. Means NEP 2020 is based on that each and every student of the society should get education. Means education should reach to the last student of the society. And whatever they are having interest in, they can read that particular topic, that particular subject in accordance to their own thing. So we have to change our approach of teaching also, and we have to first, if we are entering into a class to teach some of the students, we have to check our own understandability first. Because if we are capable of coping up with that technology, we will surely implement that in the class. Now, this is Bloom's taxonomy. I think all of us know about this particular scenario. First one is your remember. That means whatever the fundamental concepts are there, what we are doing, we are just going through it. We are making the students understand. Secondly, understand. That means whatever definitions means we have taught to the students, we try to make them understand in a very easy manner. Every day, many of us are trying our level best so that we can enhance the skill of the student. And how it will be possible? Until unless if I am not having any sort of proper knowledge on the topic, will I be able to deliver? Not possible. Now, whatever we have remembered, whatever we have understood, now it's the time to implement. It's the time to implement. After an implementation of that experiment, we have to analyze the facts. That yes, where we have improved and where the things didn't change. We have to analyze also. Secondly, after analyzing, we have to evaluate that whatever things we were having earlier, whatever justifications we have given earlier, if we are able to defend it, that means you are evaluating your own concept. And finally, it comes to create. That means the product which you are having in your hand earlier, you will combine that particular concept with the new concept. And after the compilation, you will be delivering in the class, and it will definitely create a very big impact on the student's mind. So, before moving forward, I would like to invite 4 volunteers. Can you please come? 4 volunteers are required, please. Go. Go. Yes, sir. Sir, please. Nothing to do, sir.
that supposedly if I am teaching a topic force, okay, and I have to and if I have to give a very easy example, then what I have to do? I'll be calling I'm trying to teach us a very simple concept of physics, force. We all know that if I am pushing any of the object, it will move forward. Supposedly, if I am putting some force on it, then what will happen? The object will start to move. Now, coming to, if again I push something, the force has been exerted on the body, on the object. See, now what I am trying. After applying force, what happened? The object stopped. Two concepts were clear. Now, third one. Supposedly, if sir is moving here and there, and supposedly, if I am again exerting pressure, the object has changed its direction. And again, supposedly, if this person is running, then again we can stop. So this one, thank you very much. Means concept was that we can implement some of the few examples, few of the live examples in the class itself, so that they can understand it very well. अभी जितने आदमी यहाँ पे बैठे हैं, चाहे जितने बच्चों के सामने अगर हम ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो इन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि अगर फोर्स को लगाएंगे तो कोई ऑब्जेक्ट आगे बढ़ सकता है, अगर फोर्स को लगाएंगे तो कोई ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, अगर फोर्स को लगाएंगे तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, अगर फोर्स को लगाएंगे तो वो थोड़ा सा शेप भी अपना बदल। दिस इज अ वेरी सिंपल कांसेप्ट सर। अब अगर ये बच्चों को करके दिखाते तो वो घर में खेलते खेलते भी वो जाएगा घर में क्या करेगा? दरवाजा पर खेलेगा और ये देखो हम लोग भी फोर्स लगा, फिर प्रेशर देगा, हिल गया, बोले देखो हम फोर्स की वजह से हिल गया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। और ऐसा नहीं है कि हमको एकदम रॉकेट साइंस लाना है अपने कांसेप्ट, बट थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग अपने में बदलाव शुरू करते हैं तो बच्चों के लिए आप अच्छे भी बनेंगे, क्योंकि आप उनके लिए एक सुपर हीरो बन जाए। कैसे? क्योंकि आप जो उन्हें पढ़ा रहे हो वो उनके बुद्धि में अगर बैठता चला जा रहा है तो वो आपको कम से कम डिसरेस्पेक्ट तो कभी जीवन में नहीं करेंगे, और जीवन में कभी सफल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके देख के कोने में आपका नाम अवश्य है। Now, arts integration is an approach to teaching. An appropriate to teaching refers to how something is taught rather than what is taught. यहाँ पर एक वाक्य हम लोग बोल सकते हैं सर, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स, है ना? Many of the students, if they are sitting in the class, they are eagerly waiting for their subject teacher. Why? Today sir will come, he will be discussing on this topic. अब मानकर चलिए कि आप गए क्लास में, पूरे सिचुएशन को बोरडोम कर दो, मतलब पूरा बोरिंग कंसेप्ट बना दो। बच्चे आपको कभी फिर दोबारा चाहेंगे क्या? या जितना पहली बार को आपका इंतजार करें तो दूसरे दिन से आपका इंतजार को इतना करेंगे क्या? नहीं ना। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई टीचर गया और उसी कंसेप्ट को इतने बड़े तरीके एग्जांपल्स लेकर वो समझा दिया, उसके लिए वो हीरो बना कि नहीं बना एज कंपेयर टू द फर्स्ट टीचर। तो मैटर इज व्हाट यू आर टीचिंग, दैट डजंट मैटर, हाउ यू आर टीचिंग दैट मैटर्स एक्चुअली। यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइव एग्जांपल इसमें भी देखें, बहुत सारे टीचर्स ना डेमो देने के लिए जाते हैं किसी स्कूल में, तो हो सकता है एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कम से कम 5 वहां पे कैंडिडेट्स पहुंचे। उनमें से जब फाइनली मैनेजमेंट जब पूछता है कि किनका पढ़ाई आपको अच्छा लगा, अरे पढ़ाया तो सब एक ही चीज, तरीका जो था उसने बदल दिया। उन 5 में से किसी एक का सिलेक्शन होगा, और वो इसलिए सिलेक्ट होगा क्योंकि वो तरीके को समझाया, तरीके को समझा पहले, और उसके बाद वो समझ गया कि हम मुझे बच्चों के साथ कैसे डील करना है।
That matters actually. Now, grounded on the belief that learning is actively built, experiential, evolving, collaborative, problem solving and reflective. Right now also our principals are told when the director sir and our management team were asking us to please give out some like suggestions. Means all of us were having the same thing in the mind that students should be given activity based learning. अगर अभी प्रिंसिपल साहब ने ये पूछा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देना किसका फर्ज है, उन्होंने क्या करा? हम लोगों के साइंस चैप्टर के पीछे भी ना एक्टिविटीज दी रहती है। इनमें से अपने दिल पर हाथ रख कर बोलिए सर तुम एक्टिविटीज के प्रति हम लोग ध्यान भी देते हैं क्या, उसको पढ़ते भी हैं क्या, पढ़ते हैं क्या? जब नहीं पढ़ रहे हैं सर then how can we blame someone कि our management is not helping us? हाँ, उस एक्टिविटी में अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो you can inform management, अगर मैनेजमेंट नहीं प्रोवाइड करता है then you can blame. Yes or no? तो सबसे बड़ी चीज है सर कि we just think कि अपना छुटकारा कैसे पाए और हम लोग अपना जो दूसरा पर पड़े दूसरे के माथे में कैसे टिकड़ा फोड़े, है ना? तो ये थोड़ा थोड़ी से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम बच्चों को एक्सपेरिमेंटल तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अरुण सर gave us a good suggestion कि सर at least in class 11th and 12th after every chapter experiment has to be carried out. So my question is very open to him कि sir who has taught you this? है ना? तो हम लोग कोलैबोरेटिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हम लोग का क्या है रटा है चीज कि हम सवाल पूछते हैं बच्चे जवाब देते हैं। Have you ever encouraged the students that you prepare the questions on your own and try to find out the answers of those particular questions? Have you encouraged them? No. Then how is it possible, sir? Because the product or the concepts what you were having earlier, concepts have not been changed. What has changed? The methodology, the way of teaching, and we have to change it. In which students construct and demonstrate understanding. Constructing and demonstrating understanding of one's world is an active, mind-engaging process. Supposedly, if I will be taking my students to the physics lab for teaching some of the topics, if I will be showing, if I will be discussing the topic over there only, it will definitely be fruitful for them. Why? Because what they are listening, that time they are visualizing also. Yes or no? Why we are taking some of the students to AB lab for showing the video after the completion of chapter? Why we are taking? कि जो हमने पढ़ाया उसका वीडियो जब बच्चे देख लेंगे ना, बच्चे क्या होता है वीडियो के प्रति ज्यादा मतलब एकाग्र हो जाते हैं। तो हम लोग बच्चों को अपने 12th में ही AB लैब में हम लोग बच्चों को ले जाते हैं वहाँ पर वीडियोस दिखाने के लिए, ताकि जो चैप्टर मैंने आपको बताया बेटा वहाँ पर चल के आप लोग उसका ना एकदम लाइव देखो वीडियो। बस रामायण कितने हम लोग में से कितने रामायण पढ़ सकते, लेकिन महाभारत सीरियल देख के अपन सर्च करते हैं। तो अंतर होता है सर, इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेंटली एक्टेड अपॉन इट इन ऑर्डर टू हैव मीनिंग फॉर द लर्नर। अब मानकर चलिए वो इंफॉर्मेशन अगर हम बच्चों को दिमाग में डाल दिए तो वो क्या होगा? It will start to act. When they will see the things visually, the concepts, they will be like memorizing it in their mind. और वो जो perpetual figure बनेगा ना, that we will definitely be able to write down in the question paper also. Correct? So now can we last one in the mind, sir? It will be the last one. Yes, it will definitely last, sir. Why we are asking the students to write 10 times, 3 times, 4 times? Why? Reason is एक ही शब्द को 5 बार 10 बार लिखेंगे ना, कुछ तो बैठेगा, और जो लिखतन के आगे बख्तर नहीं चलता है, तो जो लिखा हुआ रहेगा ना वो यहाँ पे भी टाइप होता चला जाएगा,
और जब आपकी बारी आएगी पेपर लिखने की ना, आप देख लीजिएगा डिट्टो अगर आप कॉपी में नहीं उतार दीजिए तो आप कहिए। सो अभी अगर हम लोग ये पढ़े मैडम तो हम लोग के बच्चे हैं तो हम लोगों को भी ना एक एक्टिविटी करना चाहिए। नहीं एक्टिविटी आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग सम पेपर्स टू यू ऑल। ये जितना नहीं आपको पढ़ना है। सर पेपर सर हाँ जी हाँ पेन है सर। चिड़िया है। I request all my colleagues to draw this sketch in your paper. कितना भी खराब ड्राइंग हो सर कोई टेंशन नहीं लेना है ना, बस जो दिख रहा है वही वहाँ पे ऐसा लगना चाहिए कि चिड़िया ही बैठा हुआ है। उसको बनाइए सर। आई एम गिविंग यू 5 minutes or 10 minutes, no problem. हाँ रेप्लिका हाँ yes, you have to draw the replica of this. बस लेकिन इसी को देखकर बनाना है सर ना, इससे अलग मत बनाइए। हाँ जी doing well. Don't copy from board. चिड़िया के साथ साथ सर ये डाल पात जो भी है सर सबको बनाना है। फल भी लेकर के आया सर, फल भी दिखना चाहिए। वेरी गुड। This tree is called hemlock. Yes, hemlock. It is penguin or something else about हाँ it? सर। It is penguin. Yes. Penguin, After the completion, it is keep it along with it. Okay, sure. where is the penguin there? Yes. Sparrow. इसका मुंह काम है।
Oh. Doesn't matter, sir, that how you are drawing. What I want to explain, you will be coming to know. What you want to try to say is that yes, sir. So all of you have completed? Yes, sir. Please take your time. Completed, everyone? Yes, sir. Thank you. Now please put your pens down. Put your pens down. Close your eyes. Close your eyes. Whatever instructions I will be getting from here, please try to follow. Close your eyes, everyone. Now I am taking you all to your childhood days. Okay. Just think out that you were only 5 or 6 years old. Imagine that you have visited to such a place where there are n number of trees. Ma'am, आँख बंद कीजिए. सोचना कहीं जंगल में घूम रहे हैं. हाँ, जंगल में घूमिए. You are having n number of trees around you. You can listen also the birds chirping. You can see n number of birds and their varieties. There is a swing also which is tied on a mango tree. Are you able to visualize your childhood days? Ramlik sir, you are laughing sir. Can you visualize it? I'm taking you 20 years back. Just think out that on which tree you were trying to climb, on which tree you were swinging, from which tree you were plucking the fruits. Are you able to think? Some words you are getting. The trees, the flowers. Just visualize it.
gradually open your eyes, slowly. Open your eyes, everyone. Now, whatever you have seen in your mind, draw it on the sheet. Whatever you have seen in the mind, the pictorial diagram, please draw on the sheet. जो कुछ भी आप लोगों ने अपने बचपने को याद करके जो देखा, no, draw only one tree on which you were sitting or under which tree you were sitting. जो रहे, it's your personal view, ना, है ना? आप क्या करती थी बचपने में वो तो आपको याद होगा। जो चिड़िया आप देखती थी जो चहचहाते थे, अब मैंने बनाइए आप लोग अपने शीट पर। आपको वहाँ डालिएगा, वहाँ से लेकर जाइएगा, तलाश का फूल दिखाई देगा या कुछ भी दिखाई देगा। साथ में उसमें कुछ लिखिए, जब तक से पहले खड़ा हुआ है तलाश के लिए आना। अपना जंगल झाड़ नहीं उनका बचपना अलग था, आपका बचपना अलग था। तो धर्म में पढ़ने में कुछ कोई आपका हंसते हुए भी फिगर बना सकता है। बचपन से गलती है ना So have you all completed? Yes, sir. Now let us understand the difference between the first instruction, what I told you, that you have to just copy as it is in your sheet. Yes or no? It was really a very difficult task, and maximum of my colleagues took around 10 minutes or 15 minutes to draw it.
Reason is very clear, because you are copying from somewhere. No. In this first activity. In the first instruction, I told you to draw the bird as it is in your sheet. But now I've changed my instruction and I told that you have to visualize that in your childhood days, which bird you saw, or under which tree you were sitting, or under which tree you were playing. That was a very easy task to draw for you all. Agree or not? Yes. तो मैटर इज वेरी क्लियर. जहां पर हमारे दिमाग में एक चित्र का मापदंड बन जाएगा, उसे फिर पेपर में उतारने में समय ज्यादा अधिक नहीं लगने वाला. लेकिन जिसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है और अचानक से मुझे अगर कोई कह दे कि इसे बनाओ, पहली बात तो हमारा हाड़ कांप जाएगा कि भैया बनेगा कि नहीं, और बन गया भी अगर गलती से तो फिर रामे भरोसे. बिल्कुल वो रामे भरोसे है, क्योंकि मुझसे भी बनवाया गया था सर, और मैं जो बनाया था वो वाकई काबिले तारीफ है. मैं आज भी उसको रखा हूँ. मैंने वो चिड़िया था कि बत्तख था, वो समझ में मैं खुद नहीं पाया, है ना, अंतर था. तो मैटर, और वहीं पे मुझे अगर विजुअलाइजेशन के लिए कहा गया था कि सर यू जस्ट विजुअलाइज द थिंग्स एंड देन इंप्लीमेंट, तो मैं चिड़िया कैसे बनाया, जैसे हम लोग ऐसे भी नहीं लिखते थे वैसे चिड़िया मैं बना दिया. एंड टीचर वाज, रिसोर्स पर्सन वाज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट चलो ये चिड़िया तो बनाने आता है. नदी अगर कोई बनाना है, नदी तो आज भी हम लोग ऐसे ही जानते हैं बनाना. सूरज बोले तो हम लोग आधा ही सूरज ऐसे ही निकालते हैं बाहर आसमान से. तो अंतर क्या होता है सर कि यहाँ पे सिनेरियो कुछ नहीं बदला, न नॉलेज बदला तो क्या, तजुर्बा, तरीका, है ना सर. तरीका बदला ना. पहले आप छाप रहे थे और फिर आपके दिमाग में जो छपा हुआ था उसको प्रिंट कर रहे थे. दोनों तो तरीका अलग अलग हो गया सर. तो दिस इज द मेजर एस्पेक्ट दैट व्हाई आर्ट्स इंटीग्रेशन शुड बी एनरोल्ड इन आवर करिकुलम. बच्चों के दिमाग में अगर आप कंसेप्ट बना दिए ना, तो आप इतना मान कर चलिए कि आप अभी जो अपना 40 मिनट का एनर्जी वेस्ट करते हैं वहां बोलने में, आप उनको तरीके से खाली 10 मिनट 15 मिनट में पिक्टोरियल डायग्राम विजुअलाइज करवा दीजिए उनके दिमाग में. आपको समझ में आ जाएगा अंतर कि आपका 25 मिनट का जो एनर्जी लॉस है वो भी बचेगा, और बच्चा कुछ क्रिएटिव कर भी पाएंगे, कुछ सोच भी पाएंगे. सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होगा सर. प्लस एक बात मान के चलिए, बच्चों को मुझे पढ़ाना तो मैं खुद नहीं पढ़ूंगा क्या, मैं कुछ पढ़ लूंगा तो मुझे अगर कुछ ज्ञान हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा मुझे, नहीं ना. तो फिर थ्रू एन आर्ट फॉर्म, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आर्ट हमारा क्या है. देखिए मैं पहले में डिस्कस अगर किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड आर्ट इंटीग्रेशन. आर्ट्स क्या होता है, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस. मतलब जिस भी परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति को अगर आप कागज पे सही तरीके से उतार पा रहे हैं, दैट इज ओनली योर आर्ट. अब मैं बच्चा को जाके बोलूंगा कि दिस इज अलमीरा, वो समझेगा क्या. लेकिन वही अगर मैं मान लीजिए कि मेरा अलमीरा है ना मैडम, फॉर एग्जाम्पल, ये वो अगर मैं बच्चा को कह दिया कि अलमीरा, उसको समझाना पड़ेगा, देख बेटा ऊपर में ये परत है, इसको अगर खोलूंगा ना तब जाके ये कबर्ड खुलेगा, है कि नहीं. इसी को अगर हम लोग पेपर के फॉर्म में थोड़ा सा मोड़ उड़ के अगर बनाए, दोनों दरवाजा खोल के दिखाएं, विल इट बी इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड और नॉट. करेक्ट. माचिस का डिब्बी, माचिस का डिब्बी अगर हम लेकर बच्चे से पूछें कि बेटा ये मैथ का, अगर मैथमेटिकल कंसेप्ट में अगर मैं आर्ट्स इंटीग्रेशन को अगर प्रवेश करवाने का प्रयास करूं तो कैसे करूंगा. एक मैथ बॉक्स होगा, क्यूबॉइडल शेप है ना, बच्चों को बताएंगे देख बेटा क्यूबॉइड ऐसा होता है, कुछ नहीं होगा. डस्टर, टाइल्स हमारे क्लास में अगर नहीं है कोई बात नहीं, दूसरे जगह और
लेकिन वो चौकोर चौकोर बना हुआ है, उसको इतना दिखा सकते हैं। देख बेटा चारों साइड बराबर है ना, ये क्या हो गया मेरा स्क्वायर हुआ। स्क्वायर भी तो हो सकता है सर, स्क्वायर भी हो सकता है। इस तरह से पहचानवाएंगे ना तो वो जहां जाएगा वही चीज देखेगा। देखो माँ ये स्क्वायर, माँ बाप को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा बिलीव करते हैं, नॉट ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। क्यों नहीं कोई बच्चा जो यूपीएससी एस्पिरेंट रहता है ना, द क्वेश्चंस आर इन्वॉल्व्ड मोर ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। सबको पता है इतिहास बदला है क्या भारत का, या बदलेगा क्या? तब तो सवाल हमेशा सेम आना चाहिए। हमारा ज्योग्राफी बदला है क्या, तो सवाल तो सेम आना चाहिए। यूपीएससी क्या करता है, अभी उस ज्योग्राफी से, उस टॉपिक से रिलेटेड अभी जो भी फेनोमेनल चेंजेस आए हैं उसको इन्वॉल्व करता है ताकि बच्चे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले सके और उसमें वो ऐसा थिंकिंग स्किल को डेवलप करे ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए दे शुड हैव अ कमांड ऑन इट। करेक्ट और नॉट? पहले क्या होता था, एसएससी का लोको पायलट का अगर आप बात करें या मान लीजिए कि ग्रेड 4 वाले में, वही घिसा पिटा सवाल आता था हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, मतलब पूरे एसएसटी से। लेकिन आज के टाइम बदल गया है सिनेरियो, क्वेश्चंस का पैटर्न बदल दिया गया है। इसलिए नहीं, साइकोमेट्रिक टेस्ट बच्चों का क्यों होता है, ये चेक करने के लिए कि उनमें कितनी काबिलियत है। शरीर तो है, बुद्धि में कितनी काबिलियत है। और जो बच्चे मुझे लगता है रिटर्न निकाल लेते हैं वही बच्चे साइकोमेट्रिक के लिए कॉल किए जाते हैं और वो बच्चे वहां जाकर हार जाते हैं। क्यों? तोते थे, रट्टा मार मार के कोई कहता है ना, बड़े गर्व से कॉलर टाइट करके कहता है, अगर गांव क्षेत्र में चले मैं ल्यूसेंट का एक एक पन्ना आपको बता दूंगा। बहुत गौरव की बात नहीं है। तुम सोचो कि तुम इतना बड़ा रट्टू तोता कॉल में आगे निकल गए हो कि तुम जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है तुमको वो क्वेश्चन पेपर का वो नंबर, पेज नंबर भी याद हो गया, तुम इतने बड़े रट्टू तोता निकल गए। अगर उसी में से थोड़ा सा क्वेश्चन को खाली ट्विस्ट कर दीजिएगा ना, दे विल नॉट बी एबल टू गिव द आंसर। व्हाई? कंसेप्ट इज नॉट क्लियर सर। पहले ही मैं दिखाया था ना, जहाँ कंसेप्ट देने की बात आती है ना, वहाँ एक बच्चे भी नजर नहीं आएंगे। यही अगर मैं बोल दूं बच्चों को कि मैं तुमको 100 में कम से कम 95 ला दूंगा, देखिए मेरे पास भी मार्क्स चाहिए सर, मार्क्स। And they are not understanding. This result, a report card, what we are getting, it is just a piece of paper and it can't decide your future, sir. आज अगर मैं यूपी के, बिहार के सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं, and if I am checking out the marks of those students ना, they were like 48%, 66% in their 10th and 12th. अगर उसी समय मैं उनका वेशभूषा देखकर उनकी औकात नाप देता तो संभव था क्या कि वो नहीं बन पाएंगे आईएएस? So ma'am, in fact we should also work on ourselves, because if you want to satisfy someone, first you have to satisfy yourself. In fact, I'm just giving an example of Khan sir. Khan sir, such a fabulous personality, outstanding man, and a very good human being also. Sense of humor also. Yes, and whatever things he is teaching, that is very practical and that is involved in the present scenario. So I think that when he went to London Talk, there he was asked one question कि सर आप आधे घंटे क्लास के लिए कितना अपना समय खर्च करते हैं? He was like, लोगों को लगता है कि ये मेरा आधा घंटा, मैं इसके पीछे पिछले 14 दिनों से लगा रहा था, तब जाकर मैं आधे घंटे का वो पूरा थ्योरी बनाऊंगा। सोचिए सर, हम लोग क्या करें? आधे घंटे में भी मान के चलिए सर, आधे घंटे का वो वीडियो बनाने के लिए उस इंसान को अगर अपना 14 दिन बर्बाद करना पड़ता है, वो भी क्यों? क्योंकि हर एक वीडियो के बाद he was actually not satisfied कि
जो मैं बच्चों को डिलीवर करने जा रहा हूँ दैट इज एप्रोप्रिएट फॉर देम और नॉट। तो उनका तरीका और हमारा तरीका जमीन आसमान का अंतर है। और जिस दिन हम ये स्किल्स अपने अंदर ले आए ना, आप एक चीज मानकर चलिए, आप छोटे स्कूल से आप बड़े स्कूल से, इट विल नेवर एवर मैटर यू, नेवर एवर। और आपका पूर्व पूजा जाए इस वजह से नहीं कि आप शिक्षक हो, इस वजह से जो आप क्वालिटी दे रहे हैं ना। एंड nowadays this generation doesn't want quantity, उनको क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है। they are having enough, बहुत सारे मास्टर्स हैं वहां बाहर कोचिंग, लेकिन वो स्कूल इस वजह से भी आते हैं ताकि कुछ उनका जो लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन, कुछ नया वो हमसे सीख सके। हर एक बच्चा जब अपने घर से चलता है या हम ही लोग कभी अपने गणतव्य की ओर बढ़ते हैं तो एक आस लेकर कि आज अगर मैं वहां जा रहा हूं तो वहां से ये चीज हासिल करके लाऊं। लेकिन जरा सोचिए कि हम क्या जस्टिफिकेशन कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। दे आर coming to a school in a very eager manner to learn something new, and if we are unable to deliver them, will it be like not sophisticated for them? It's very difficult. वो आपकी इज्जत करते हैं, आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन घर में अपने माँ पापा के साथ अवश्य डिस्कस करेंगे कि माँ सर ना ऐसा है कि खाली किताब रीड करवाते हैं और उसी को हिंदी में बता देते हैं या उसको भी तरीके से नहीं बताते। आपको लगता है कि बच्चा जब आपको सामने को इज्जत दे रहा है डर से, तो उसके माँ बाप के सामने आपका इज्जत बन पाया क्या? और किसी के दिल में उतरने के लिए आज सुबह शायद कोई बोला भी था कि अनिल सर आज बोले माने व्यवहार, तो व्यवहार मतलब ये ऐसा मतलब कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, नमस्ते हम सब समझते हैं, लेकिन और उसके बाद बच्चों को पढ़ाते नहीं तो कोई माँ बाप आपको लाइक नहीं करेगा। Now, today's research points to the power of learning through a variety of visual, oral, and kinesticated learning modalities so that student can actively process what they are learning. जो आज का करंट सिनेरियो हमारा, आज का जो जनरेशन है, अगर इस पे एक्सपेरिमेंट्स किया जाए ना तो ये एकदम साफ आप लोगों को पता चल जाएगा कि बच्चे आजकल विजुअल तरीके से ज्यादा समझ रहे हैं, ना कि आप जो ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो कीजिए। हम लोग ओरली भी बच्चों को समझाते हैं ना, हम लोग ओरली, अगर मैथ्स में ही अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एक वायर ले लूं, अपना मान लीजिए कि यूएसबी केबल ही ले लूं और केबल को ही मोड़ कर उसके सामने रख दूं और बोलूं कि बेटा देखो यही सर्कल होता, वो बच्चा ज्यादा समझेगा ना, क्योंकि वो शेप देख लिया त्वरित रूप में, जहां कहीं भी देखेगा ये मामा मामा देखो सर्कल बोलेगा ना। क्या हम लोग क्लास में अपने हर सब्जेक्ट में हम लोग आर्ट इंटीग्रेशन को उतार सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर चाहत होना चाहिए। और हम यही मानते हैं कि all of us are parents and someone will be like they will also become parents. हमारी चाहत रहती है कि हम अपने बच्चों को ना सबसे बेस्ट दें, वो अपने बच्चे नहीं है क्या? पैसा दे रहे हैं तो वो हमें खरीदे नहीं है, बात सही है, दैट इज वेरी ट्रू। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली हम समझाएं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई अबैकस सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड न्यू टेक्निक्स टू सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो फिर हम अपने बच्चों को यहाँ स्कूल जो आते हैं, हमें जो अपना गुरु मानते हैं, उनके साथ फिर भेदभाव क्यों? Are you getting my question, sir? Yes, sir. Are you feeling good, sir? Just it's reality. Now students engage in a creative process. The heart of arts integration is engagement in the creative process. अगर मैं अभी किसी बच्चे को बोलूं कि बेटा मैं कुछ रंग बिरंगा कागज का टुकड़ा आपको दे रहा हूं, इससे मुझे आप फ्लावर बना के दिखाना, देखिएगा, देन एंड देयर, यस मैम आई विल डू, लग जाएगा काम और वो फूल बना ही देगा, क्योंकि
देखिए हम लोग बात करते हैं कि वी शुड मींस आवर क्लासरूम शुड बी वेरी एंगेजिंग। एंगेज हम कैसे कर सकते हैं? Until unless if I won't give them some work to do in the class, will they get engaged? अन्यथा होगा यही कि 40 मिनट में हम लोग जाएंगे ब्ला 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 ब्ला, बच्चा भी बोलेगा करता रहेगा, उसे भी कुछ समझ में नहीं, आपका भी एनर्जी वेस्ट हो गया, चले जाएंगे आप, है कि नहीं? लेकिन वहीं पर अगर मैं बच्चों को अगर कहूं कि बेटा तुम मुझे ये बनाकर थोड़ा दिखाओ, तो वो देखिएगा कितना मतलब खुश हो जाएगा। नहीं होता है अंदर से जो खुशी, चलो सर हमको कुछ बनाने दिया। और हमारे भी बचपन में होता क्या था सर कि अगर कोई टीचर हमें स्पेशली बुला के बोले बेटा तुमको आज ये कर लेना, मतलब वी वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इट, क्योंकि वो ना हम लोगों के लिए गर्व की बात होती थी कि सिर्फ 40 बच्चों में से सिर्फ सर हम ही को उठा के बोले कि तुमको करना है। नहीं, बच्चा का गुण होता है, हीरो लाइफ फीलिंग, हीरो लाइफ फीलिंग है, लगता है मैंने पुनीत भगवान, है ना? तो अब देखिए, arts integration requires that students do more than repeat a song, copy an art project or follow directions. They must create something that is original and of value. In fact, we choose our role models. कोई बोलेगा सलमान खान मेरा रोल मॉडल है, कोई कहेगा अमिताभ बच्चन मेरा रोल मॉडल है, कोई कहेगा नरेंद्र मोदी मेरा रोल मॉडल है। अरे भाई, we are trying to copy each other. Every human being is having unique characteristics. बशर्ते आप लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि प्रॉब्लम कहां से होता है सर कि हम लोग कभी अपने आप को समय नहीं दे पाते। We can't find our capacities, abilities to do some new work, some new experiential work, you can say. How many of us are in a habit of sitting alone and talking to yourself on a daily basis for at least 15 to 20 minutes? How many of you are, sir? Please raise your hand. Every day I am talking. Every day 15 to 20 minutes you have to invest and you have to talk. You don't have to talk to someone else. You have to talk yourself. Sometimes. On a daily basis, sir? On a daily basis you talk to it? Yes. Very good, sir. So, have you came to know some of the capabilities, sir? Can you please give me some answers? I want to improve myself. I'm not only in the field of teaching, and often I like Means you want to be a multi-talented person. But you want to be, I am telling that, sir. And why you are just like, sir, talking to everyone and everyone? अरे बनना है सर, क्यों नहीं बनेंगे? So you want to improve yourself. So you are getting some of the responses. Yes, sir. You are getting some of the responses. सर, एक बहुत अच्छे शायर ने कहा था कि जिंदगी में उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात की। तो नहीं हो पाता है ना, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है समझिए। We are actually busy with those matters which are not necessary for us. We are engaged in overthinking. हम वहां नहीं है तो मेरे बारे में क्या होता? अरे बोलेगा, बोलने तो ना भाई, तेरे मुंह पे तो नहीं कह रहा, दिल पे क्यों ले रहा? और जिंदा है तभी तक तो शिकायतें हैं ना आपकी। मरने के बाद तो आपसे बेहतर इंसान कोई था ही नहीं, क्या है कि नहीं? और आप किन लोगों की बातें सुन रहे हैं? जब तक जिंदा थे तब तक तो आपको पूरा एकदम बढ़िया बढ़िया बातें सुनाते रहते थे, बढ़िया बढ़िया समझ रहे हैं ना आप लोग? तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा है, ऐसा इग्नोर करते थे। सोचिए, इंसान की जब मौत होती है ना, उसके अर्थी को भी जब ले जाया जाता है ना, तो चार लोग जैसे पकड़े रहते हैं ना, थोड़ा दूर अगर अर्थी हमें ले जाना रहता है, उसमें भी लोग बदलते हैं कि अरे भारी लग रहा है, थोड़ा रखो। जान रहा है कि आदमी अपने अंतिम यात्रा पे निकला हुआ है, वहां जो आपका साथ नहीं देगा तो जिंदगी में आपको क्या साथ देगा?
जिंदगी में कौन साथ देगा आपको? दोस्ती उससे करो जो साथ देगा। दोस्त कोई नहीं होता अपना, दोस्त कोई नहीं होता अपना। If I am attached to divine public school, पैसा मिलता है। True. I am getting something. Now, लंच करिएगा तो ऐसा कुछ Now, I was discussing this particular slide that students have to be engaged in a very creative process. Very true. Right now, if they will be listening a song, they will continuously repeat the song. And finally what happens? Till now, we are not able to learn any rap songs. But nowadays, if you will ask a student of class 3 also, he will be dictating each and every word of that particular rap song very clearly. Why? Just due to the repetition. Continuously repeated. Now, copying. If any of the art project was given to them, just as I gave you to draw a bird, so what you all did? You all just copied it. Have you understood? Have you tried to visualize? Yes. At that particular instant, at that particular time, what would have been the scenario? What would have been the environmental phenomena? Have you all thought about it? No. Now, they must create something that is original and valuable. So, this art integration actually requires the students to just enhance themselves, like not to copy, not to repeat the things, try to create. छोटा ही होगा लेकिन मेरा खुद का अपना होगा, है ना? If we will be trying to correlate this sentence to our normal life also, पहले के मतलब बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे कि 50,000 रुपए की नौकरी से बेहतर है कि तुम अपने खेत पर हल जोतकर 5,000 रुपए महीने कमाओ। छोटा ही रहेगा पर तुम्हारा खुद का अपना रहे, उसका मालिक तुम खुद रहोगे और तुम्हारे पे कोई राज नहीं करेगा। If teachers are overly concerned with the neat process and product, they tend to make the creative choices for students and direct the outcome. इस केस में होता क्या है? कोई टीचर इतना ज्यादा माने सिंसियरिटी का लगता है, उन पे भूत सवार चढ़ा रहता है। वो चाहते हैं ना कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही भी है, उसी अनुपात पे आपको काम भी करना है, वरना आप गलत। अब मानकर चलिए एक बात सर, अगर राम सर बेचारे मैथ्स पढ़ाते, हम लोग सभी को ही जानते हैं और इस बात से अग्री भी करते हैं कि मैथ्स का एक ही सवाल का 10 प्रकार का सॉल्यूशन हो सकता है। क्या देवेश सर? हो सकता है। मान लीजिए कि राम सर ने एक प्रोसेस का इस्तेमाल करके, जिसमें कि उनको पता था कि मार्किंग स्कीम ज्यादा है सीबीएसई में, उन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो किया, तो उसमें उन्होंने क्या पाप कर दिया? कुछ पाप किया क्या? दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं सर को गलत पढ़ा, देखिए हम इधर से घुमा कर रहा है तो भी वही आंसर है। अरे बुढ़बक, तुम दूसरा प्रोसेस अपनाया, दूसरा मेथड अपनाया। अब हम कान इधर से पकड़े चाहे ऐसे घुमा के पकड़ना तो कान है ना भाई, तो सही तरीके से पकड़ेंगे। तो वो टीचर क्या चाहते हैं ना, उस टाइम में क्या जाता है, टीचर सेंटर्ड हो जाता है। और टीचर सेंटर्ड जहां हुआ क्लास, अब मानकर चलिए डर से वो शांत तो अवश्य रहेंगे, ना तो कुछ समझेंगे ना तो कोई सवाल आप पर उठाएंगे और आपको लगेगा वाह मेरा क्या पढ़ाई है कि एक बच्चा भी सवाल नहीं उठाता। अरे महाराज आपका पढ़ाई है नहीं समझ में आ रहा तो सवाल कहाँ से बुनाएगा? क्या? हाँ सही बात। अब देखिए in these cases the creative process is present but only for the teacher, जो अभी मैं डिस्कस की। Now it is the teachers or teaching artist's responsibility to set a creative problem or challenge for students to solve, but not to take over and solve the challenge for the students. कोई होता खुद चैलेंज दे भी दिए, या फिर मान लीजिए कहीं दूसरे जगह से कोई दूसरे टीचर का चैलेंज बच्चे लेकर आए कि सर
You are the best teacher, sir. You are the best teacher. Just to take that best teacher award, what students, what teachers are? अच्छा वो सब नहीं, लाओ लाओ मैं बना के दिखा दूँ. सर आप उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. आप बनाकर अगर दे दिए तो वो बच्चा को जहाँ तक सोच पाना चाहिए था वो सोचा क्या? सोच पाया क्या? अपनी बुद्धि को वहां तक ले जा पाया क्या? सर मेरा कहना है कि हम सपना देखेंगे तो आसमान का देखेंगे, नहीं भी पहुंच पाए तो बादल तक तो अटकेंगे, नहीं एकदम अटकेंगे भाई. तो सर अगर हम बच्चे को फोर्स जब तक नहीं करेंगे कि यू हैव टू थिंक, बार बार अगर प्रेशर नहीं डालेंगे तो बच्चा कभी सोचेगा क्या? पढ़ाई में तो वैसे भी लोग नहीं करना चाहता. खेलकूद में बोलिए तो देखिए नया नया क्रिएटिव चीजें. अच्छा खेलकूद में क्रिएटिव चीजें कहाँ से वो लोग ला पाता है? एक कुछ नहीं मिला, चलो ना वो खेलेंगे, पिट्टो खेलेंगे. नहीं, एगो बड़ा सा कोई ईटा ले लिया, उसको चूर दिया, सन मून स्टार खेलेंगे. ये सब क्रिएटिविटी बेटा कहाँ से लाते हो? और अगर ला रहे हो तो उसी चीज को पढ़ाई में क्यों नहीं ला पा रहे? लाने का तरीका क्या है? वहां पे जितने दोस्त रहते हैं ना, वहां पे बहुत सारा दिमाग एक्ट करता है ना. मान लीजिए कि 10 का ग्रुप है, 10 थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगाया अपना. बुद्धि लगाने के बाद क्या हुआ ना, देखिए बुद्धि लगते 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 दे आर कमिंग आउट विद द ब्यूटीफुल फेदर्स. उनके पास एक बहुत अच्छा आइडिया आता है, चलो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो हम टीचर्स नहीं कर पाते जो उनको चाहिए. क्या हम लोग अपने बच्चों के लिए ऐसा प्रॉब्लम उठाते हैं क्या? हम लोग भी सर मतलब तरीके से अगर देखा जाए, अपना फाइनल एग्जाम ले, चाहे अपना पीटी ले, संजय सर हम लोगों को बड़े रिस्पेक्ट के साथ इस चीज को बोलते हैं कि भैया अपना अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करें. हम लोग समय पे कितना दिन दिए? जूनियर टीचर्स मैं मानता हूँ दे आर रियली वेरी अटेंटिव, और हमें उनसे, हम सारे सीनियर टीचर्स को उनसे कुछ सीखना चाहिए कि वो एक महिला होकर अपने घर को भी चला रही है, समाज को भी ढो रही है, उसके बाद एग्जाम पे पंक्चुअल है. So we should really appreciate them and we should learn from them. लेकिन हम लोगों में खामी कहाँ है? जब तक 2-4 बार प्रिंसिपल सर नहीं बैठाएंगे तब तक क्वेश्चन पेपर आना शुरू नहीं होता. और जब क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने बनाया भी, क्या हम लोगों ने बहुत बखूबी उसको डिजाइन किया है क्या? पीछे का ही एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन उठा के दे दिए, यही परीक्षा लेना था तो नहीं लेते, ऐसे ही नंबर दे देते बच्चा का जितना आपको पता है कि उसको इतना नॉलेज है. अरे कुछ उसको अलग हटकर तो दीजिए. मैं आपको टॉपिक तो बदलने नहीं बोल रहा, कुछ क्वेश्चंस वैसा इन्वॉल्व तो कीजिए. ठीक है मैं मान सकता हूँ बोर्ड भी ये चीज पे चलता है कि 80% आसान क्वेश्चन रहे, 20% थोड़ा टफ क्वेश्चन. जब अगर सीबीएसई पैटर्न पर तो हम लोग तो उसी के मतलब अधीन काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं? तो हम लोग बच्चों के लिए कितने दिन क्वेश्चंस वैसा वैसा बना कर ले जाते हैं. अच्छा बच्चों चलो आज तो आप लोगों को कल मैं पढ़ाया था ना, उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो इसका थोड़ा उत्तर बताओ. कभी किए हैं क्या? नहीं कर जाते हैं, ये बुक देखें, एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन उठा के देखें. दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट एनीमोर सर. और मैं एक चीज आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर मारामारी है ना नौकरी की, तो टीचर सेक्टर में भी बहुत मारामारी है नौकरी की. इफ यू आर नॉट रेडी टू एनहांस योरसेल्फ, रेडी टू गेट आउट द स्कूल. सीधा सा बात, टीचिंग लाइन नहीं आती. Which connects an art form and another subject area. A distinguishing aspect of arts integration is its interdisciplinary connections. Connections are made between a specific art form and a specific curriculum. मैंने इस स्लाइड से पहले 2-3 स्लाइड पहले एक शब्द का प्रयोग किया था, कोलैबोरेटिव. कोलैबोरेटिव मतलब क्या? एक दूसरे के साथ जोड़कर काम करना, है ना? कोलैबोरेटिव मतलब क्या? इसके भी चीज को ले लिया, इसके भी चीज को ले लिया, दोनों को मिला दिए, मिश्रण कर दिए. उससे देखिए क्या होता है. अब मान लीजिए प्रॉब्लम कहाँ उठता है सर? हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ठीक, और रवि सर भी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, साहा सर भी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, दीक्षा मैडम भी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं. सबका अपना अपना एक लेवल होता है, हर किसी इंसान का लेवल होता है, उसके पास हर एक के पास यूनिक कैरेक्टर्स. लेकिन अगर हम इस तैश में रहें कि नहीं हम रवि सर से पढ़ा, हम दीक्षा मैडम से पढ़ा, हम साहा सर से पढ़ा, संभव है क्या?
या लोग एक साथ कभी बैठकर बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर सकते? बताइए, संभव है क्या? कभी हम लोग इस चीज पे चर्चा करते हैं कि यार छुट्टी कब से लगेगा, इस चीज का समय है छुट्टी का, सही बात है। लेकिन इस चीज में हम लोग कभी चारों को मिलकर हम लोग जानते हैं कि भैया हम लोगों का जो फाउंडेशन अगर तरीका देखा जाए तो इंग्लिश ही हमारा सब्जेक्ट है बेसिक। कभी हम लोग मिलकर बैठकर ये सोचे हैं कि अच्छा हमें अपने टेक्निक्स में क्या क्या मतलब चेंजेस लाने चाहिए जिससे बच्चों को हम और अच्छे से हम लोग उनको प्रदर्शित कर सकें। अभी सोच पाए क्या? मान लीजिए मैं अगर बैठना चाहूँ एक दिन किसी सौरभ सर के साथ में फिजिक्स के लिए बैठना चाहूँ, मैं अंग्रेजी का टीचर। देखिए इंटरडिसिप्लिनरी यहाँ पे कनेक्शंस बोल रहा है, दैट मींस यू हैव टू डेवलप कनेक्शंस। अब आप एक ही एग्जांपल से आपको 2-3 सब्जेक्ट्स को अगर आप क्लैरिफाई कर ले रही हैं तो एक एग्जांपल बेहतर कि 3 अलग अलग एग्जांपल बेहतर? अलग अलग एक एग्जांपल है ना बेहतर हमारे लिए, क्योंकि एक में ही क्या होगा, हम फिजिक्स भी पढ़ा दिया, अंग्रेजी भी पढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बहुत हम केमिस्ट्री भी घुसा दिया। सोचना पड़ेगा। और अब अगर सोचेंगे कि इकट्ठा अगर हम लोग काम नहीं करना शुरू करेंगे ना तो दिक्कत आपको भी है, दिक्कत हमको भी है, दिक्कत पूरा डिवाइन को। डिवाइन ही को छोड़िए, कहीं पे भी आज के टाइम पे आपको आने वाले समय में इस आर्ट्स इंटीग्रेशन के बेस पे भी जो इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे ना, आर्ट्स इंटीग्रेशन में आपकी क्या नॉलेज है, आपकी क्या टेक्निक्स है, वो भी वो चेक करना शुरू कर देंगे, ऐसा मुझे जहां तक लगता है। और कम से कम अगर एनईपी लागू हो गया अगर, तब तो एकदम 100% अगर आपके पास थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, then only you will be able to sustain or else no. For example, the arts can connect to school concerns such as character education, bullying, collaboration, habits of mind, or multiple intelligences. I'm just giving you an example. I was a teacher in class 4. I was teaching moral values and general knowledge over there. So once I took permission from principal sir and I took the students out of the class. मैं कुछ ज्यादा नहीं किया, 6 बच्चों का ग्रुप इधर बना दिया, 6 बच्चों का ग्रुप इधर बना दिया और बीच में दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे खड़ा करवा दिया। और मैं बीच में ना 2 बच्चों के सामने, जैसे आमने सामने 2 बच्चे हुए, उन दोनों के सामने मैं एक ग्लास बीच में रख दिया और मैं उन लोगों को कुछ एक्सरसाइज भी करवाता। देखिए फायदा क्या हो, जैसे मैं उनको बोला, खड़ा जो करवाया, उनको मैं बोला कि बेटा if I will be giving you the instruction head, so you have to touch your head. If I will ask you to touch your shoulder, you have to touch your shoulder. If I will ask you to touch your waist, you have to touch your waist. That means I was making them familiar with the body parts also. Yes or no? उसके बाद अब मुझे मोरल वैल्यूज भी पढ़ाना था, तो what I did, मैं बोला इसी क्रम के दौरान, इसी एक्सरसाइज करवाने के दौरान मैं आपको बोल दूंगा ग्लास, और जैसे ही ग्लास बोलूंगा ना, जो बच्चा झपेटा मारेगा, और मान लीजिए इधर 6 बच्चे हैं और इन लोगों ने मिलकर 4 ग्लास अगर इकट्ठा कर लिया और इधर के 2 बच्चे हैं, इधर के जो 6 बच्चे उन लोगों ने मिलकर मात्र 2 ही ग्लास को इकट्ठा किया, तो इधर वाली टीम जीती। इसका मतलब क्या, वहां से एक चीज समझा सकते हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस टीम वर सिंक्रोनाइज्ड। सब एक ही तरह का सोच रहे थे, एक ही तरह का माइंडसेट था कि एनी हाउ आई हैव टू कलेक्ट द ग्लास। तो यूनिटी स्ट्रेंथ का भी हम यहाँ से उन लोगों को ज्ञान दे सकते हैं क्या? तो हम लोगों ने साइंस का भी कुछ बात कर लिया और मोरल वैल्यूज की भी बात कर ली। दिस इज कॉल्ड आर्ट इंटीग्रेशन। कभी कभार बच्चों को मैं जंप इन जंप आउट करवाता हूँ। क्यों? So that they can develop listening skills. लिसनिंग स्किल क्या है? देखिए बच्चों में आज के समय पे सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम उनके साथ क्या है, दे आर नॉट एबल टू लिसन प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं कि बात बहरा है वो सब, नहीं, मतलब दिमाग कहीं और, दिल कहीं और, मन कहीं और, है ना, शरीर बस इस क्लास में। अब जो बोलते हैं ना कि मतलब जो उठा हुआ है उसको हम उठाने का प्रयास करेंगे तो हम पागले हैं ना। हम जान रहे कि नाटक कर रहा है, उठेगा वो कभी, वो आप भूलते रह जाएगा। अरे तुम तो जगे हुए हो प्राणी भाई, जो सोया हुआ है सच में ना, उसको अगर 2 बार भी ऐसे से हाँ भाई बोलो क्या बात,
उठ जाएगा, क्योंकि वो नाटक नहीं करता। तो जब कोई बच्चा होता है कि सोच के ही आता है कि हमको अपना 7 पीरियड निकालना है फिर वापस घर आना है, लेकिन कुछ बच्चों में हैबिट नहीं हो पाता लिसनिंग। टीचर पढ़ा रहा है, बोर्ड पे उनका ध्यान है, लेकिन कुछ इधर नहीं आ रहा, तैयारी पढ़ा होता है। अब सोचिए कहानी क्या हुआ, तो कुछ समझ पाए क्या? कुछ नहीं समझ पाए। कल जब रिजल्ट खराब होगा तो सबसे पहले माँ पापा आपसे मिलेंगे। साइंस के टीचर कौन थे? हाँ सर मैं ही था, बोलिए ना, मेरा बच्चा का नंबर कम आया। उसके माता पिता के सामने आप ये भी नहीं बोल सकते कि आपका बच्चा खराब है, क्योंकि किसी के माँ बाप का उसमें क्या गलती, उनको आघात क्यों पहुंचा? नहीं लगता है इस बार नहीं पढ़ा होगा, अच्छा स्टूडेंट तो है, किसी कारण बस आया होगा, लेकिन प्रॉमिस करो उसके डांट के में बोले प्रॉमिस करो अगला बार अच्छा रिजल्ट है। कि हमको दोनों पर तरफ मैनिपुलेट करना है ना, तो कनेक्ट करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, टीचर को भी लगा नहीं चलो मास्टर अच्छा है, बच्चा को भी लगा मास्टर हमको बचा दिया। नहीं, देखिए कहाँ से गेम चला, करते 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 हम साइकिल को क्या किए, घुमा दिए। आया था टेंशन में, गए खुशी खुशी। यही तो है, इट इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट्स, यही तो आर्ट्स है। हाँ, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. हिंदी अर्थ क्या है? अगर कोई बच्चा नहीं याद कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, जिस प्रकार से हमें उसे समझा रहे हैं, तो हमें अपना तरीका बदलना चाहिए उन्हें समझाने के लिए। ये तभी पॉसिबल है जब हम उन बच्चों के साथ कनेक्ट हो। अगर मैं उसको एक मात्र ड्यूटी के रूप में अगर मैं मानूंगा कि 40 मिनट मुझे लेक्चर देना है, चलो तो आज ये पढ़ा दूंगा, you will never ever get connected with the students। लेकिन जब आप ये सोचेंगे ये 40 बच्चे मेरे हैं, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस क्लास के आखिरी बच्चे तक को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तब जाकर मानेंगे कि आप असली शिक्षक क्या ज्ञान देना बहुत आसान है सर। बहुत बार हम लोगों को भी कहा जाता है कि क्लास में आप लोग बैठा मत कीजिए, मोबाइल मत चलाइए। मैं दूसरे को क्या बोलूं, मैं 2-3 बातों खुद धरा गया हूँ। तो होता है, इंसान है, कभी हमारा भी पैर थकता होगा, तो कभी पैर हमारा भी थकता होगा तो हम लोग रेस्ट ले लेते हैं। वो बोलिए कि मेरी किस्मत खराब थी, उसी टाइम पे प्रिंसिपल सर दौड़े पे आए, तो वो मैं मान सकता हूँ, वो उनकी पॉइंट नहीं है। तो बात होती है सर कि हम लोग बच्चों से अटैच नहीं, और जिस दिन हम अटैचमेंट उनसे ला लेंगे ना, आप समझिएगा ना, आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। जो चीज आपके सामने दिखेगा ना, उसी चीज के थ्रू ना आप बच्चे को पढ़ा दीजिए। हाँ सर, सर प्लीज आप दोनों आइए। सर आप आइए, देवेश सर आइए, आइए। हाँ आइए। मान लीजिए क्लास 1 का बच्चा नया नया भी सर्कल सीखना है ना, थोड़ा सर्कल बनाइए, हाथ थोड़ा पकड़ लीजिए आप लोग। कभी हम लोग बच्चों को ये समझाने का प्रयास किए, बेटा देखो ये 4 भाग मिले एकदम गोल है ना, दिस इज वन सर्कल एंड if I am standing in between, so I am the center of the circle, है ना, I am the center of the circle। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा घूमते रहिए। सोलर सिस्टम, please give me a hand, please give me a hand। you give me, this is diameter, this is diameter, और एक बार को गिरा देंगे तो this will only be my radius। हम लोग इस तरह से पढ़ाने, थैंक यू वेरी मच। हम लोग इस तरह से कभी हम लोग प्रयास किए बच्चों को पढ़ाने का? नहीं किया। आसान तरीका है कि नहीं? 2 हाथ पकड़ लिए डायमीटर हो गया, 1 हाथ गिरा दिए रेडियस हो गया, और दोनों हिला दिए तो हम सेंटर हो गया। भैया ये लोग नाच रहे मेरे आज है ना।
साहा सर का एक क्वेश्चन था कि सर सही आप सब कुछ तो बता दिए, ये बताइए कि इंग्लिश में हम लोग आर्ट्स इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कैसे करें? No, English, not only that. I told that you say, for example, in a teacher of English, I try to tell him that one thing, that is, when I'm just making understand the poem expression, then especially if the brain and making understand the poem, then how to make them understand? As you told, that is our part from the math, physics, chemistry, whatever, told that is all. But ठीक है here we can make it. रवि सर प्लीज स्टैंड अप, साहा सर प्लीज कम आओ, भरत सर प्लीज कम आओ, शुभम सर प्लीज कम आओ, प्लीज 1 2 3 4 हाँ अरुण सर कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। What I am trying to demonstrate सर, इसी में आप लोगों को समझ में आ जाएगा अगर अंग्रेजी की बात अगर सर प्लीज For the timing, you are the power. Yes. 3. we will be just performing a short play to make you understand that how we can integrate English with arts. चैप्टर समझाने की बात है वो समझ जाए। देखिए ये पेड़ है हमारा, साहा सर प्लीज करो। इस शॉर्ट प्ले में मान लीजिए कि मुझे अगर कोई ऐसा पोयम पढ़ाया जा रहा है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पोएट है ना बहुत टेंशन में, हाँ सर आप बैठो, बहुत टेंशन में, मान लीजिए करना क्या है, देखिए हम लोग बिना कुछ बोले हुए इस प्ले को करेंगे। करना इसमें क्या है मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ। मैं इधर से पूरा टेंशन में आऊँगा। मैं जब भी लोग अक्सर टेंशन में रहते हैं ना तो वो प्रकृति की गोद में ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहां से मुझे कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। तो मैं आया, ये पेड़ था, मैं पेड़ के नीचे आके ना अपना माथा झुकाते बैठ गया। अचानक से ये बंदर उछल के मेरे सामने आया। देखिए मूड स्विंग कहाँ से शुरू हुआ। मैं उधर से घुसा था किस मूड में, उदास था। ये बंदर को जैसे ही कूदते हुए देखा ना तो मेरे चेहरे पर थोड़ा तो मुस्कान आया। जब मैं फिर उठा, जब वह टहलने लगा प्रकृति की गोद में, देख रहा हूँ कि दो सुंदर सुंदर कलियां, दो सुंदर सुंदर फूल हैं। तो मेरा पूजा क्या हुआ, अपलिफ्ट हुआ ना। 10th में रवि सर अगर आपको याद होगा डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, उसमें क्या ग्रो जो है वो कहाँ से थोड़ा सा डस्ट लाया था स्नो का, पोएट के माथे पर जिसका गिर गया था, और पोएट इस बात को एक्सेप्ट किया कि इस डस्ट की वजह से जो मेरा दिन बर्बाद हुआ 12-14 घंटा वो तो हुआ ही, लेकिन जो बचा हुआ मेरा दिन था वो मेरा खराब नहीं हुआ। क्या सर? तो आई विल जस्ट शोइंग यू, आप लोगों को करना क्या समझ में पता तो दिएगा। Shall I jump up on you? There is a pain that was not taken, written by Thomas Coach, or Shakespeare's poem there is also that is silenced. But there is different types
want to get a chance to a good college. Yeah, what should you do? Because here you are teaching us that should not run out of us. 160. What to do, what career, what future? This is my question. Okay. Thank you very much. Sure. Thank you very much. See, सर एक क्वेश्चन था बहुत ऐसे पोएम होते हैं जिसको हम लोग मतलब ड्रामा या कोई भी चीज का एक्टिविटी करके नहीं सीखते जैसे एक पोएम था हम लोग में 2015 में सीखा वाटर वाटर मिले वर्ड्सवर्थ जैसे राइटर वाटर वाटर उसका लाइन वाटर वाटर सो वाटर बट देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक उसको कैसे एक्सप्रेस करें हम लोग तो जैसे पोएट समुद्र में रहता है नाव में वो ट्रैवलिंग करता है ठीक है लेकिन उसके पास पानी तो चारों ओर है लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है कि वो पी पाए उसको हम कैसे एक्सप्रेस करें इंग्लिश में बहुत ऐसे पोएम होते हैं जिसको हम एक्सप्रेशन नहीं देते सर एक्सप्रेशन नहीं देते दैट इज वेरी गुड एस्पेक्ट बिकॉज़ सर होता क्या है कि रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को भी अगर हम इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे ना अंग्रेजी में और उसमें सोचेंगे कि उसमें कोई आर्ट इंटीग्रेशन का प्रयास करें तो दैट इज नॉट पॉसिबल ओनली व्हाट वी कैन डू अगर मानकर चलिए कि हमें किसी सर प्लीज मैं बता रहा अगर किसी बच्चे को अगर मुझे याद करवाना है मुझे कुछ सिखाना है तो उसको क्या करूंगा एक को बोलूंगा 10 बार रंगो पेंट करो है ना इट इज ऑल्सो आर्ट फॉर्म दूसरी चीज आप एक्सप्रेशंस की जहां तक बात है सर वी हैव टू पुट आवरसेल्फ कि मैं अगर उस सिचुएशन में रहता तो मैं क्या करता सिनेरियो बेस्ड यू हैव टू प्रिपेयर द ड्रामा अब मान कर चलिए सर कोई अगर मैं स्टोरी पढ़ूं Rama can do that so long. Rama can start. Yes, exactly. I know this can do. But especially the play, that is very heavy task. How to do it? Many points are there. That I do. so the best answer will be like we are having a great conceptual Baba along with us Google Baba है ना from there we can definitely because if we are a teacher that doesn't mean that we know each and everything we also learn from somewhere so we can take help after because we will not be getting that particular video but some videos will not be directly linked but it will give you some of the useful tips which will you can utilize in your class correct or not so the thing is we have to work why I am telling you that before entering the class you have to work upon yourself then only you will be able to deliver. Yes, sir. And the third question, what it was, sir? Scoring. I am not taking this school because this is in a rural area, and here maximum parents actually demand marks. मेरे बच्चों को काहे इतना कम नंबर आ गया? They actually want marks, but when you will be traveling to urban areas आज के समय में पेरेंट्स की भी जो सोच है ना वो बदल रही है वो सोच बदल रही है उनको पता है कि अगर मेरे बच्चे का मार्क्स कम भी आता है ना तो दे आर नॉट स्कोल्डिंग देयर चिल्ड्रन बिकॉज दे आल्सो हैव लर्नड आफ्टर व्यूइंग सो मेनी स्टोरीज these marks are just to jump from one class to another. It will never define his career. Okay. So they are also getting broad-minded. And it's the responsibility of each and every teacher also. We are arranging parent-teacher meet. अभी हम लोगों के पास I think that जब suggestions की बात आ रही थी तो one of the suggestion came from Abhishek sir also that on means every month or after every 2 months meeting should be held with parents ये बात में डिस्कशन के लिए नहीं कि बच्चा आपका घर में पढ़ पाए कि नहीं करेंगे लेकिन यहाँ के माँ बाप के जो सोच है उनको भी बदलने की आवश्यकता है because if their words are not scoring well what they are doing they are directly blaming to the टीचर्स कि टीचरे नहीं पढ़ाया होगा सच्चाई है सर तो हम लोगों का काम क्या है सिर्फ बच्चा को पढ़ाना
अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो सबसे बड़ी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी कि जीवन में वो क्या बनेगा नहीं बनेगा वो अभी रहस्य है। कम से कम उसको शुरुआती दौर से एक अच्छा इंसान तो हम बना सकते हैं ना। तो अच्छा इंसान जब बनाएंगे ब्रॉड माइंडनेस उसमें खुद ब खुद आएगा, क्लैरिटीज उसके लाइफ में खुद ब खुद आएंगी। उसके बाद आपको कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अगर एक छोटा सा कहानी भी उनको सुना दोगे ना तो वो उसका मीनिंग निकालेगा कि आप उसके थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल फ्रॉम दिस स्लाइड आल्सो वी आर लर्निंग कि वी हैव टू add some of the magical techniques through which we can enhance the thinking skills, the speaking skills, the learning skills of the students. और क्या हम लोग कल गौरवान्वित फील नहीं करेंगे अगर हमारा बच्चा किसी अच्छे पद पर बैठे तो? ठीक है, वो आपको एक डब्बा मिठाई का नहीं पहुंचाएगा, डजंट मैटर, लेकिन इस चीज की तो एहसास रहेगी कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज वहां पर है। सोचिए कि आप में कितनी काबिलियत थी कि आपने वैसे बच्चे को भी पढ़ाकर वहां तक पहुंचा दिया। और वो कैसे संभव? पहले तो खुद को तराशने की आवश्यकता है। क्या है ना? हम बदलाव न लाएं और सोचे कि बच्चा बदलाव लाए। अरे शुरुआत तो मतलब जो घर का मुखिया होता है वहां से होना चाहिए। कोई भी बदलाव अगर शुरू करते हैं तो घर के मुखिया से ही होगा। I'll not be taking much longer, sir. How much time are you? 123. अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन मींस प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स हमारे पास क्या क्या डिस्प्ले करते हैं। बैनर्स, कुछ ऐसा भी आइटम लोग बना सकते हैं जो हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे लगा दे, नोटिस बोर्ड पे लगा दे, जो आते जाते बच्चा देखते रहे। देखते 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 क्या होगा? एक बार मान लीजिए कि चिड़िया का आंख फिट हुआ, एक बार जब बार हुआ तो देखा चिड़िया का नाक फिट हुआ, करते करते पूरा शरीर बन जाएगा और उसके दिमाग में वो छप जाएगा। दूसरी चीज पब्लिकेशन, डॉक्यूमेंट्स फॉर इजी कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मींस अगर मान लीजिए कि आपने कुछ नया कुछ खोजा है, गो फॉर पेटेंट, नो डाउट, बट उसको इस प्रकार कम से कम अटेंटिवली हैंडल आउट कीजिए ताकि समाज का गरीब से गरीब बच्चा भी आपके डॉक्यूमेंट्स को ना व्यू कर सके। उसमें अब आपका व्यू करने जा रहा है, उसमें कोई सब्सक्रिप्शन मांगने लगे कि 99 रुपए देकर, 299 देकर, वो लेगा क्या? जिसके पास खाने का पैसा नहीं, वो आपका 100 रुपए और 150 रुपए कहाँ से लाए? टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्टोरीज, आप लोगों को याद होगा एक बार राजीव सर ने बताया था डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्डिंग्स, पावर पॉइंट, मतलब जो भी चीजें, जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज हम ला रहे हैं, वी शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट एंड इट शुड बी इजीली अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ताकि वो कहीं पर भी कभी भी उसका इस्तेमाल कर सके और अपने स्किल्स को एनहांस कर सके। So last but not the least, we are concluding our session and I'll be requesting all my fellow mates, my colleagues, that whatever suggestions we are giving suggestion is very easy, but implementation is very tough. So rather I would like to request all of you that we were discussing on activity based learning. At least we have got some knowledge, we have acquired some knowledge. I might not be that much competent, but if you want to enhance your weight, अगर आपको क्लास में अपनी वजन बढ़ानी है तो इस सोच के वजन को भी बढ़ाना होगा, अपने कला के वजन को भी बढ़ाना होगा, तभी हम शायद बच्चों को अपना बना सकते हैं। बच्चों को ऐसे प्रारूप में बना देंगे
कहीं भी जाएंगे तो नाम लेंगे। मानकर चलिए +2 के बाद तो आप उन्हें रोक नहीं ना सकते, कहिएगा क्या है कि यही BCM प्लस इसमें एडमिशन ले लेते हैं, जाएगा ही। अब जाएगा, कम से कम अगर उसके वहां पे कोई फिजिक्स टीचर पढ़ाएंगे कुछ, कहेगा ना नहीं सर ये आपका सही नहीं है। मेरे वहां के सर जो थे ना वो इस कंसेप्ट से पढ़ाते थे कि आप कहीं नहीं गए, आपका वजन गया, आपके ज्ञान का वजन गया, आपका तरीके का वजन गया। तो let us promise ourselves from today onwards कि we will definitely, ठीक है changes एक दिन में नहीं आएंगे, but slowly and gradually we will be developing ourselves, we will be developing our skills. So that's all about my topic. Thank you very much for being a very good spectator. Thank you very much. You have to wait for the snacks time. उनको जो बोला था अभी पूरी बोली होता है, ये पहले से सादा नहीं है। कौन दवाई ये पता ना हो ना दवाई ले कौन डिलीट दवा दे ना भैया गलत हो तो फिर अभी काट दिया से मन